Hello, a very warm welcome to one and all. Myself, Sakshi Tiwari, a technical instructor at Techno Brilliant Learning Solutions. Today we are going to see that on the topic of interview preparation. So, what should we include in interview preparation? What are the key points that we should succeed in our interview? So preparation is the key to confidence. Means when we prepare something, it may be for interview or it may be for our college exams or it may be for our technical interview, HR interview or any exam. So if after preparing we have a little means we have something that we will succeed. We have confidence. We have some knowledge on that topics, and we have prepared something over there. Okay, so this video or this lecture is on mastering the interview strategies for success. How we can succeed in our interview. Okay, so we will see that why interview preparation matters. So, what do you think why interview preparation matters? It only matters, as I told you in the first slide, it only matters for confidence, for our knowledge, and for our preparation. Okay. So, the first point why interview preparation matter is creates a strong and lasting first impression. As you all know that first impression is the last impression. Okay, it means that it shows you are prepared and somehow you have confidence on that, making you memorable to that interviewer. Means something you are apart from everyone. Okay, so this means that you should create a first impression in the mind of that interviewer. Second point is that demonstrates professionalism and interest in the role. It means that it reflects your seriousness and enthusiasm for the position. Means you are interested in that position, you are serious about that role. It reflects that. The third point why interview matters, why interview preparation matters is that it helps you communicate your strength clearly. Means what? It allows you to express what you are good at in focused and effective way. Okay, मीन्स आप जो चीज में अच्छे हो वो चीज आपकी दिखाई देती है जब आप क्लियरली विथ स्ट्रेंथ बोल पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो, तब आपकी वो चीज और आपका जो फोकस्ड है, इफेक्टिव वे है आपका एक्सप्रेस करने का, वो कम्युनिकेशन के थ्रू दिखाई देता है. Okay, next point is that shows alignment with the company's cultures and values. Means what? Sorry, proves you understand and fit into the company's mission and environment. इंटरव्यूअर को ये पता चल जाता है कि आप वो कंपनी के मिशन और एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो चुके हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हाई इंटरव्यू प्रिपरेशन मैटर्स, builds confidence and reduce interview anxiety. जब आप प्रिपेयर्ड होते हो ना, तब आपके पास एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और आपकी जो एंजाइटी है विदाउट प्रिपरेशन वो लेवल कम होती है. मीन्स व्हाट? प्रैक्टिस लीड्स टू फीलिंग मोर इन कंट्रोल एंड लेस नर्वसनेस. जब हम प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो हमारा नर्वसनेस लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है और हमारा जो कंट्रोल होता है कि हम ये चीज पे इतना बोल पाएंगे वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर्स यू फॉर कॉमन एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. मीन्स व्हाट? हेल्प्स यू रिस्पॉन्ड स्मूथली टू बोथ अंडरस्टैंड एंड ट्रिकी इंटरव्यूज. जब आप कॉमन एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता है इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो क्वेश्चंस आपको पता ही नहीं होते हैं विदाउट प्रिपरेशन, जो कुछ क्वेश्चंस आपको पता नहीं होते, जब आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको कुछ नए क्वेश्चंस पता चलते हैं
तो आप वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है इंटरव्यू प्रिपरेशन में। नेक्स्ट कि हाइलाइट्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। जब आप प्रिपेयर करते हो, आपके पास नए नए क्वेश्चंस आते हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप उसको सॉल्व करते हो और उस पर थिंक करते हो कि ये कैसे वर्कआउट होगा। दैट मीन्स दैट इट लेट्स यू शोकेस हाउ यू अप्रोच चैलेंजेस एंड थिंक लॉजिकली। वो आपको मजबूर करता है कि आप लॉजिकली थिंक करो और वो चैलेंजेस को अप्रोच करो या फिर सॉल्व करो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के इंटरव्यू होते हैं। अब हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन उसके भी टाइप्स होंगे ना। एक ही टाइप का इंटरव्यू होता है क्या? नहीं, उसके भी टाइप्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। पहला है एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू में क्या होता है? एचआर इंटरव्यू मतलब क्या होता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, कल्चर फिट, कम्युनिकेशन और बेसिक बैकग्राउंड। एचआर इंटरव्यू आपको क्या देखता है? आपकी पर्सनैलिटी देखता है। एचआर इंटरव्यू का काम क्या होता है? वो आपकी पर्सनैलिटी इवेल्युएट करता है, आपके वैल्यूज, आपकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, आप किस वे से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका बेसिक बैकग्राउंड क्या है, और आप कंपनी के साइड से कितने अवेयर हो, कितने अलाइन हो कंपनी के साथ। ये सब काम एचआर इंटरव्यूअर का होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू जो है वो टेक्निकल इंटरव्यू है। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या देखा जाता है? आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स इवेल्युएट की जाती है। टेक्निकल स्किल्स को देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है। कोडिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको टेस्ट किया जाता है। और जो आप डोमेन में हो, जो आप जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके टेस्ट किए जाते हैं। ये होता है टेक्निकल इंटरव्यूअर का काम। वो आपके सारे टेक्निकल स्किल्स टेस्ट करता है। नेक्स्ट होता है बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यू मतलब क्या? वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस और स्टार मेथड को देखता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टार? स्टार मीन्स, इन स्टार एस रिप्रेजेंट्स फॉर सिचुएशन, टी रिप्रेजेंट्स फॉर टास्क, ए रिप्रेजेंट्स फॉर एक्शन एंड आर रिप्रेजेंट्स फॉर रिजल्ट। तो वो काय पे फोकस करता है? मीन्स आपने आपके पास्ट में कैसे सिचुएशंस को हैंडल किए हैं और कैसा आपने उस पर रिएक्ट किया है, ये बिहेवियरल इंटरव्यूअर चेक करता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको आपके टीम वर्क कैसा है, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो टीम में, आप इनिशिएटिव कितना ले रहे हो, आपका इन्फ्लुएंस क्या है, लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क स्किल्स, ये सब आपके ग्रुप इंटरव्यू में टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट केस बेस्ड इंटरव्यू। केस बेस्ड इंटरव्यू में क्या होता है? जैसे ये लिखा है, स्ट्रक्चर थिंकिंग और बिजनेस लॉजिक टेस्ट किया जाता है। मतलब क्या? आप लॉजिकली, आपका एनालाइज किया जाता है कि लॉजिकली कितना तुम सॉल्व कर रहे हो रियल वर्ल्ड बिजनेस को। रियल वर्ल्ड जो बिजनेस लॉजिक होता है वो आप कितना सॉल्व कर रहे हो, आप कैसे स्ट्रक्चर से थिंक कर रहे हो, आप कौन से टाइप से थिंक कर रहे हो, एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, ये सब आपका केस बेस्ड इंटरव्यू में टेस्ट किया जाता है। दिस आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू जो आपको फेस करने होते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने सब तो अभी तो टाइप्स भी देख लिए, प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर लिया। अभी हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर जो हायर कर रहा है वो क्या चीज देखता है जब वो हायर करता है एक इंडिविजुअल को या फिर एक पर्सन को। तो वो आगे वाले में क्या चाहता है, उसमें क्या होना चाहिए। पहला है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए उसके। वो कितना क्लियरली अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पा रहा है और कितना एक्टिवली कन्वर्सेशन को सुन पा रहा है, ये एम्प्लॉयर इस पे मतलब लुक ऑफ करता है कि आगे वाले में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या। नेक्स्ट वो देखेगा कॉन्फिडेंस कैसा है, क्लियरिटी और ऑथेंटिसिटी कैसी है। मीन्स क्या?
आप कितने अश्योरेंस से बोल पा रहे हो, खुद का जो अश्योरेंस होता है सेल्फ अश्योरेंस, आप सेल्फ अश्योरेंस से कितना बोल पा रहे हो, कितना क्लियरली आप वो चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, कितना सच बोल रहे हो खुद के लिए इन द सेंस क्या, आपके कंपनी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या देखता है एम्प्लॉयर, कल्चर फिट एंड टीम कॉम्पेबिलिटी। कल्चरल फिट एंड टीम कॉम्पेबिलिटी मतलब क्या, कि आप कंपनी के वैल्यूज से कितने अलाइन हो, आप कितना अच्छे से काम कर रहे हो टीम में, मतलब आपके मतलब जो भी है आपके साथ, उनके साथ आप कितना अच्छे से काम कर रहे हो, और आप कंपनी के कल्चर से कितना अवेयर हो, कितना अलाइन हो, ये एम्प्लॉयर जानना चाहता है। जब वो आपका इंटरव्यू लेता है तो ये सारी चीजें एम्प्लॉयर देखता है। नेक्स्ट क्या देखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड अ लर्निंग माइंडसेट। आप कितने अच्छे से चीजें टैकल कर रहे हो, आप कितने अच्छे से चैलेंजेस को टैकल कर रहे हो, और कितने ओपन हो आप लर्निंग के लिए, कंटिन्यूस लर्निंग के लिए आपका माइंडसेट कितना ओपन है, ये चीज एम्प्लॉयर देखता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड ओवर एग्जिस्टिंग स्किल। आपका जो आप जो ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हो, विलिंगनेस दिखा रहे हो आगे बढ़ने के लिए, इवन इफ आपके पास वो स्किल नहीं है, अगर आपके पास वो स्किल्स, कुछ स्किल्स नहीं है, सपोज मेरे में कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, आगे वाले को ये बता रही हूँ कि मैं उस पर वर्कआउट करूंगी, मैं उसको एक चीज ऐसा क्या बोलते हैं उसको, प्रॉम्प्टली बता रही हूँ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कोप अप करूंगी, मैं ये चीज ग्रो करूंगी। ठीक है, तो वही एम्प्लॉयर चाहता है कि, वही इंटरव्यूअर या एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर रहा है वो चाहता है कि आप में कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं भी है तो आप वो कितना सीखना चाहते हो, ये एम्प्लॉयर जानना चाहता है। नेक्स्ट, एडेप्टेबिलिटी एंड ओपननेस टू फीडबैक। एडेप्टेबिलिटी मीन्स क्या, कि आप चेंजेस को कितना एडेप्ट कर रहे हो, कितना एडजस्ट कर रहे हो इजीली, और आप फीडबैक के लिए कितना ओपन हो, फीडबैक मिलने के बाद आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो खुद में, ये एक एम्प्लॉयर देखता है जब वो हायर करता है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिवनेस। इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिवनेस मतलब क्या, कि आप कितने एक्शंस ले रहे हो, आपका एक्टिवनेस कितना है, आपके एंटिसिपेशन नीड्स और इश्यूज को आप कैसे हैंडल करते हो, ये सब आपका ऑन द स्पॉट, अगर आपके साथ कोई इश्यू हो गया तो आप उसको क्या कैसे हैंडल कर रहे हो, ये कौन देखता है, एम्प्लॉयर देखता है। रीडेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक। रीडेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक्स मीन्स क्या, कि आप कितने डिपेंडेबल हो, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, और आपने जो कमिट किया है वो आपका वर्क जो आपने कमिट किया है वो कैसे आप क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर क्वालिटी वर्क दे रहे हो, जो कमिट किया हुआ वर्क है वो आप कैसे क्वालिटी वर्क डिलीवर कर रहे हो, ये एक एम्प्लॉयर हायरिंग के टाइम देखता है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर एंड मीट डेडलाइंस। आगे वाला, उसको कितना भी प्रेशर डालो तो वो कैसे वो अंडर प्रेशर काम करेगा, कितनी उसकी एबिलिटी है अंडर प्रेशर काम करने की, और वो डेडलाइंस को कैसे मीट करेगा। मीन्स एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी डेडलाइन है और वो डेडलाइन के अंदर वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, तो वो प्रेशर के अंदर कैसा वो पूरा काम कंप्लीट करेगा और वो डेडलाइन के अंदर वो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, ये एम्प्लॉयर चेक करता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन एंड पैशन फॉर द रोल एंड कंपनी। आप कितने, आपके पास कितना जेन्युइन इंथुजियाज्म है कंपनी के लिए, और आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप क्या आपका क्या कंट्रीब्यूशन है कंपनी के लिए, कितना आपको मोटिवेशन है, आपका पैशन है जो रोल में आप काम कर रहे हैं, जो कंपनी में आप काम कर रहे हो उस लिए। ये सब वर्कआउट चेक करने का एक एम्प्लॉयर का काम होता है आगे वाले इंडिविजुअल में, जब वो इंडिविजुअल को हायर करता है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं द मेन वेपन इन द इंटरव्यू
इज योर कम्युनिकेशन। जैसा आप कम्युनिकेट करोगे उस डायरेक्शन में इंटरव्यू चलता जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन ये एक सीक्रेट वेपन है जो अपने पास होता है जब हम कोई चीज करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग पास भी हो जाते हैं, मतलब आगे भी चले जाते हैं, और कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग नीचे भी आ जाते हैं। सो हम देखते हैं कम्युनिकेशन में पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्लियर एंड कॉन्शियस एंड स्ट्रक्चर्ड आंसर्स। हमारे आंसर्स कैसे चाहिए? घुमा फिरा के नहीं बोलना है। घुमा 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 के बोलने से क्या होगा, आगे वाला कंफ्यूज होगा और उसको ऐसा लगेगा कि आपको वो चीज पता नहीं है, इसलिए आप ऐसे आंसर दे रहे हो। सो क्या करना, एक पॉइंट पे क्विकली लॉजिकली वो थॉट्स को एक्सप्रेस कर देना। ये हुआ क्लियर कम्युनिकेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल। एक चीज आपको बोलना है तो उसको पॉइंट टू पॉइंट लेकर एकदम लॉजिकली और अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए एकदम लॉजिकली वो पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना। ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग एंड अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज? अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या, कि जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो हमारा गेस्चर और पोस्चर एकदम अपराइट होना चाहिए। हम लोग जैसे घर में बैठते हैं या फिर कहीं और बैठते हैं, ऐसा नहीं बैठना है। हम लोग को एकदम अपराइट बैठना है। ठीक है, और हमारी जो लिसनिंग है वो हमारी कैसे होना चाहिए? एकदम अटेंटिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ये हुआ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो हमने क्या करना चाहिए? मेंटेन आई कांटेक्ट टू बिल्ड रैपोर। हमने क्या करना चाहिए? इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड होता है। इंटरव्यूअर और आप में ट्रस्ट और कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीक कॉन्फिडेंटली बट अवॉइड ओवर टॉकिंग। कॉन्फिडेंटली बोलो, ठीक है, जब एक्सप्रेस योरसेल्फ विद सेल्फ अश्योरेंस, ठीक है, बट डोंट डोमिनेट द कन्वर्सेशन। आप बोलो, जब वो पूछ रहा है, आगे वाला कुछ पूछ रहा है, तब आप रिप्लाई करो, कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करो, सेल्फ अश्योरेंस के साथ रिप्लाई करो। बट जब वो कुछ बोल रहा है ना तो वो सुन लो, उसको डोमिनेट मत करो। वो चीजें सुन लो और उसके बाद आप रिप्लाई करो। आगे वाले की बात अवॉइड करके आप बोले ही जा रहे हो, इट्स नॉट गुड। ओके, टेलर योर लैंग्वेज टू द ऑडियंस। व्हाट इट मीन्स कि आपकी जो टोन है और वोकेबलरी है वो जो है वो आप इम्प्रूव करो। जो आपकी लैंग्वेज है वो ऑडियंस तक टेलर करो, मतलब आप क्या बोल रहे हो वो उनको समझना चाहिए, ऐसे फ्लो में बोलो। पॉज ब्रीफली बिफोर आंसरिंग टू गैदर थॉट्स। व्हाट इट मीन्स, taking a moment help you answer more clearly and thoughtfully। अगर आप तीन चार चीजें एक साथ बोल रहे हो तो एक ऐसा पॉज लो जिसके वजह से वो अच्छे से और क्लियरली समझ आए। नेक्स्ट, आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन इफ अनश्योर अबाउट द क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपको समझा ही नहीं है क्वेश्चन फिर भी आप पूछे ही जा रहे हो, ऐसा मत करो। आप क्या करो, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप क्वेश्चन को क्लैरिफाई करो, एक बार पूछो कि क्या क्वेश्चन था और उसके बाद उसका सही आंसर दो। ठीक है, इट विल बी बेस्ट प्रैक्टिस फॉर योर इंटरव्यू। नेक्स्ट, यूज पॉजिटिव एंड एंगेजिंग टोन ऑफ वॉइस। आपका जो टोन ऑफ वॉइस है वो लिसनर को इंटरेस्टिंग चाहिए। ऐसा बोलो कि आगे वाले को सुनने में इंटरेस्ट आए और आपका इंथुजियाज्म उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ऐसा बोलो। नेक्स्ट, समराइज की पॉइंट्स टू रीएनफोर्स योर मैसेज। मेन आइडिया पे स्टिक रहो, जो आपके मेन आइडिया है। जब आप एक की पॉइंट को लेकर बोल रहे हो तो वही की पॉइंट को लेकर बोलो और वो आइडिया पे स्ट्रक रहो, ताकि
इंटरव्यूअर के साथ आपका कम्युनिकेशन बेटर हो और इंटरव्यूअर के साथ आप वो मेन की पॉइंट पे स्टिक रहो। ये हुआ summarize key points to reinforce your message. Avoid filter words like like and you have. ये जो फिल्टर वर्ड्स है ये यूज मत करो। इट मेक्स योर स्पीच साउंड मोर कॉन्फिडेंट एंड पोलिश्ड। मतलब क्या, ये जो वर्ड्स है ये बार बार अगर आप यूज कर रहे हो ना तो आपका जो मीन्स कॉन्फिडेंट और जो आप अच्छे से बोलना चाह रहे हो वो आपका कॉन्फिडेंट क्या होता है या फिर आपका जो कम्युनिकेशन फ्लो होता है वो खराब हो जाता है। शो इंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट थ्रू योर कम्युनिकेशन स्टाइल। आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से आप एक्सप्रेस करो कि मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ और स्ट्रांगली मैं ये रोल के लिए या फिर मेरा जो इंटरेस्ट है वो एकदम जेन्युइन और स्ट्रांग है और मैं ये चीज के लिए एक्साइटेड हूँ, मेरे में इतना इतना इंथुजियाज्म है। ये आप कौन से स्टाइल से बता सकते हो, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से बता सकते हो। ठीक है, देखो हम पूरे इंटरव्यू में ये सब चीजें करके अपना कम्युनिकेशन क्या कर सकते हैं, आगे वाले के हाथ से हम वो इंटरव्यू छीन के अपने तक रख सकते हैं। ठीक है, सो कम्युनिकेशन ये एक ऐसा पॉइंट होता है इंटरव्यू में कि हम इंटरव्यू को अच्छा भी बना सकते हैं और वो पूरा भी बन सकता है। फिर वो अपने हाथ में होता है कि इंटरव्यू को कैसे हम रैप करें। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्फिडेंस वर्सेस एरोगेंस। कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए लेकिन एरोगेंस नहीं होना चाहिए। देखो अभी पहला पॉइंट देखो, शो प्रिपेयर्डनेस एंड नॉलेज। अगर हम कॉन्फिडेंट है तो हमारा प्रिपेयर्डनेस और नॉलेज दिखाई देगा। दैट मीन्स शो द मटेरियल एंड इज रेडी। अगर मतलब अभी वो ये चीज क्या बता रही है, शो प्रिपेयर्डनेस एंड नॉलेज, सॉरी शो प्रिपेयर्डनेस एंड नॉलेज मीन्स व्हाट, कि आप प्रिपेयर्ड हो कोई चीज के लिए। और एरोगेंस में क्या, ओवर क्लेम एबिलिटी और एक्सरगेशन मीन्स प्रिटेंड टू नो मोर देन दे गो और एक्सरगेट। ये एरोगेंस का पार्ट हुआ। नेक्स्ट, मेंटेन काम एंड कंपोज्ड डिमेनर मीन्स व्हाट, कि हमारा कंपोजर कॉन्फिडेंस है कि हम अंडर प्रेशर भी काम रह सकते हैं। एरोगेंस में क्या, इंटरप्रेट अदर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, कट अदर्स ऑफ और डोमिनेट द कन्वर्सेशन। एरोगेंस कैसे दिखाई देता है, अगर हम कोई कन्वर्सेशन को बीच में से कट कर रहे हैं या इंटरप्ट कर रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं तो ये एरोगेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेशर आ रहा है फिर भी हम क्या है, काम है, ये हमारा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। यूज स्टेडी एंड अप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट। हमारा आई कॉन्टैक्ट कैसे चाहिए, स्टेडी चाहिए और रिस्पेक्टफुल आई कॉन्टैक्ट चाहिए। कभी भी रिस्पेक्टफुल आई कॉन्टैक्ट से हमारा ट्रस्ट और हमारी बॉन्डिंग बिल्ड होती है। एरोगेंस में देखो डिसमिसेस और इग्नोर फीडबैक। फीडबैक मतलब हम हमारे में इतना एरोगेंस होता है कि हम वो फीडबैक पे इम्प्रूवमेंट ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब डिसरिगार्ड कर देते हैं फीडबैक को या फिर इग्नोर कर देते हैं। ये किस चीज की निशानी है, एरोगेंस की निशानी। कॉन्फिडेंस में देखो, लिसन एक्टिवली विदाउट इंटरप्शन। हम विदाउट इंटरप्शन एक्टिवली सुन सकते हैं फुल कॉन्फिडेंस से, लेकिन टॉक्स ओवर पीपल और डोमिनेट। आगे वाला बोल रहा है फिर भी हम बोलते ही जा रहे हैं, उसको इग्नोर कर दे रहे हैं और उसको डोमिनेट कर दे रहे हैं। ये किस चीज की निशानी हुई, एरोगेंस की। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में। एक्सेप्ट एंड लिसन फॉर फीडबैक। फीडबैक एक्सेप्ट करो, सोचो और उसको इम्प्रूव करो। वेलकम फीडबैक टू ग्रो। फीडबैक आ रहे हैं
तो उनको वेलकम करो, उसको जो भी हमारे में लैग हो रहा है उसको इम्प्रूव करो, और क्या करो, उसको इम्प्रूव करके अपना वे एक्सेप्ट करो। शो इम्प्रेशन और कंडेंसेशन मीन्स व्हाट, ये एरोगेंस का पार्ट हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रूडली रिएक्ट कर रहे हैं या इम्पेशेंट बता रहे हैं क्रिटिसिज्म को, हमारे में पेशेंस ही नहीं है। ये सब किस चीज की निशानी है, एरोगेंस की। एक्सप्रेसेस ओपिनियंस रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव ओपिनियंस मीन्स क्या, हम व्यूज क्या करना चाहिए, हमारे जो थॉट्स है या फिर व्यूज है उनको पोलाइटली और ओपनली शेयर करना चाहिए। एरोगेंस में देखो, रेफ्यूजेस टू एडमिट मिस्टेक्स और वीकनेस और मिस्टेक्स को रेफ्यूज करना कि नहीं, मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, मेरे कोई फ्लॉइज नहीं थे। ये सब किस चीज की निशानी है, एरोगेंस की निशानी है। नेक्स्ट, एक्नॉलेजेस अदर कंट्रीब्यूशन मीन्स क्या, अप्रिशिएट करना टीम मेंबर को उसके एफर्ट्स के लिए, ये हुआ तुम्हारा कॉन्फिडेंस। और एरोगेंस क्या हुआ, बिलीव्स दे आर बेटर देन अदर्स। एरोगेंस क्या हुआ कि एक्ट एंटाइटल और सुपेरियर। आप नहीं, आगे वाला अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने की जगह ऐसा दिखा रहे हो कि नहीं मैं तुझसे अच्छा हूँ, ये हुआ आपका एरोगेंस। अडैप्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव, ये हुआ आपका कॉन्फिडेंस। मीन्स वॉज एडेप्टेबिलिटी, आप में नई चीजें सीखने की और पढ़ने की आपकी, आप ओपन हो, अडेप्ट कर रहे हो वो चीजों को, न्यू इंफॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव को अडेप्ट कर रहे हो, ये हुआ आपका कॉन्फिडेंस। और एरोगेंस क्या हुआ, शो डाउन डिफरिंग ओपिनियंस, मतलब क्या, रिजेक्ट्स अदर ओपिनियन आउटराइट। कॉन्फिडेंस में देखो, स्पीक क्लियरली एंड असर्टिवली। कॉन्फिडेंस ग्रो विथ प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ग्रो होगा। और अगर हम ईगो से चल रहे हैं, एरोगेंस से चल रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। अभी हमने देखा कि कॉन्फिडेंट होना और एरोगेंट होना में क्या डिफरेंस है। अगर हम ये राइट साइड वाली चीजों पे फोकस कर रहे हैं तो हम एरोगेंट है, और राइट लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक पर फोकस कर रहे हैं तो हम कॉन्फिडेंट है। नेक्स्ट, अभी कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों में, वो क्या होते हैं हम देखते हैं। कॉमन मिसकंसेप्शंस में पहला कंसेप्शन है, इफ आई एम स्किल्ड आई विल गेट दी जॉब, अगर मैं स्किल्ड हूं तो मुझे जॉब मिल जाएगी। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जो लोगों में होते हैं। इफ यू आर स्किल्ड स्टिल यू वोंट गेट द जॉब। स्किल्स अलोन डजंट गारंटी सक्सेस। आप में स्किल्स है लेकिन आप में फॉर एग्जांपल आप आईटी इंडस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप में कोडिंग नॉलेज है, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, आपको कोई प्रोग्राम दे दो तो आप उसको विद इन सेकेंड और विद इन मिनट टाइप कर सकते हो, आप बता सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। बट आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो इंटरव्यू के लिए, आप में इंटरव्यू क्रैक करने का नॉलेज ही नहीं है, या फिर आप में कम्युनिकेशन का एक भी पॉइंट नहीं है, या फिर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, I can wing it. Lack of preparation often leads to missed opportunities. आपने प्रिपेयर किया लेकिन थोड़ा सा ही किया, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, तो इससे क्या होगा, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। अभी ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि मेमोराइजिंग आंसर इज इनफ, आपने मेमोराइज कर लिया आंसर और आप चले गए इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपको पता है कि इंटरव्यूअर आपको कौन से पॉइंट पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, इसके लिए हमको हमेशा प्रिपेयर होके जाना है। एडेप्टेबिलिटी एंड जेन्युइन रिस्पॉन्सेस मैटर्स मोर, जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिमेम्बर किया है, वो आप वहां जाके बोलोगे तो आगे वाले को समझ आता है कि आपने ये कैसे तो पढ़ के आया है। आपके जो जेन्युइन रिस्पॉन्स है बहुत मैटर करते हैं।
नेक्स्ट, इंटरव्यूअर ओनली केयर अबाउट टेक्निकल स्किल। ऐसे मिसकंसेप्शन होते हैं जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि इंटरव्यूअर को बस हमारे टेक्निकल स्किल से फर्क पड़ता है, बाकी ही डोंट केयर। बट दिस इज मिसकंसेप्शन, ऐसा नहीं होता है। हमने इंटरव्यू के टाइप में देखे कितने टाइप ऑफ इंटरव्यू होते हैं, और हर टाइप, हर अलग अलग टाइप ऑफ इंटरव्यू अलग अलग इंटरव्यूअर लेता है अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स। सॉफ्ट स्किल एंड कल्चरल फिट आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जितने आपके टेक्निकल स्किल्स इम्पोर्टेंट है, उतने ही आपकी सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन देखते हैं क्या होता है। इंटरव्यू इज जस्ट अबाउट आंसरिंग क्वेश्चन। नो, इंटरव्यू जस्ट क्वेश्चन और आंसर नहीं होता है। इंटरव्यू क्या होता है, आगे वाले के मन में एक इमेज क्रिएट करना, आगे वाले के सामने एक इमेज क्रिएट करना या अपना इंप्रेशन बिल्ड करना, इसको बोला जाता है इंटरव्यू। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन, आई डोंट नीड टू आस्क क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछने चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हमने क्वेश्चन नहीं पूछे तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है या हम वो कंपनी के लिए एंगेज्ड ही नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन भी किस टाइप के होना चाहिए ये भी डिपेंड करता है। अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो हमारा इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारी एंगेजमेंट रिफ्लेक्ट करता है, और हमको हम कितना वो आगे, मतलब कितना वो इंटरव्यू के लिए हम कितना वो इंटरव्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वहां पे रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट, अभी देखो मिसकंसेप्शन और एक है, रिजेक्शन मीन्स आई एम नॉट गुड इनफ। बट नहीं, आपको रिजेक्शन आ रहे मतलब आप गुड नहीं हो, आप बैड हो, ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स इट इज अबाउट फिट और टाइमिंग, नॉट जस्ट एबिलिटी। आपके पास सब कुछ अच्छा है, लेकिन आगे वाले की रिक्वायरमेंट या फिर आगे वाले के हिसाब से, आपके अगर स्किल्स मैच नहीं हो रही है तो वो एक अलग वे हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट इम्प्रेशन डज नॉट मैटर मच। ये तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पहला इंप्रेशन कोई मैटर नहीं करता। दे ऑफन सेट द टोन फॉर द एंटायर इंटरव्यू। जब आप एंटर करते हो इंटरव्यूअर के सामने, वो हर चीज नोटिस करता है कि आप एंटर कैसे कर रहे हो, आप बैठ कैसे रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, गेस्चर पोस्चर कैसा है, आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, आपका आई कांटेक्ट क्या है। ये सब चीजें फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड नोटिस की जाती है। सो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फर्स्ट इंप्रेशन डज नॉट मैटर मच। एंड द लास्ट वन इज ओनली एक्सपीरियंस मैटर। नहीं, एटीट्यूड एंड विलिंगनेस टू लर्न आर हाईली वैल्यूएबल। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल आपके पास लर्निंग माइंडसेट है, आपके पास एटीट्यूड है, आप जो चीजें हो रही है, जो चीजें चल रही है वो डेवलप कर सकते हो, मीन्स वो चीजें ग्रास्प कर सकते हो, ये सब भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यूअर के लिए। ओके, सो ये सारे मिसकंसेप्शंस जो है 9 पॉइंट्स, ये मिसकंसेप्शंस हमने हमने सोचने नहीं चाहिए या फिर हमने अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोल फॉर रिसर्च क्या होते हैं। रोल रिसर्च के लिए हमने क्या रिसर्च करके जाना चाहिए जब हम इंटरव्यू में जा रहे हैं। सपोज एक कंपनी है, वो कंपनी के इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं, सो हमने कुछ रिसर्च करके जाना चाहिए, ताकि अगर सामने वाला पूछे हमारे को कंपनी के रिगार्डिंग और कंपनी से रिलेटेड, तो हमको वो चीज बताते आनी चाहिए। सो इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ, इसने इतनी सारी चीजें जानी है ये कंपनी के बारे में, ये अवेयर है कि यहाँ का कल्चर कैसा है, वैल्यूज कैसी है, रिसेंट में क्या चल रहा है, ये सब। नेक्स्ट क्या है, नो द रोल एंड इट्स रिक्वायरमेंट। मीन्स क्या, आपको अंडरस्टैंड करना है स्किल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और एक्सपेक्टेशंस क्या है ये जॉब के रिगार्डिंग, जो रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, टेलर योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। मीन्स क्या, आपके आपको जो रिस्पॉन्स है वो टेलर करना, मतलब क्या,
कस्टमाइज योर आंसर्स टू मैच द कंपनीज नीड्स एंड रोल। आपके आंसर को ऐसा मॉडिफाई करो, ऐसा कस्टमाइज करो कि वो कंपनी के नीड और रोल से मैच हो जाए। आइडेंटिफाई की प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स द कंपनी इज इन्वॉल्व इन। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? की प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव जो जिसमें कंपनी इन्वॉल्व है, वो प्रोजेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करके रखो। उससे क्या होगा, आप फैमिलियर होंगे कि कंपनी में क्या वर्क चल रहा है, और ये जब इंटरव्यूअर को बताओगे तो वो एक जेन्युइन इंटरेस्ट के हिसाब से आपका शो होगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कंपनीज कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट पोजीशन। मार्केट में कंपनी की क्या पोजीशन है, उसके कितने कॉम्पिटिटर्स है, ये सब अंडरस्टैंड करो, एनालाइज करो। अगर आपको ये सब चीजें पूछी जाए तो आपको बताते आना चाहिए। इसके वजह से आपका क्या होगा, एक ऐसा लगेगा कि हाँ, इसको ये रोल में इंटरेस्ट है, तभी इसने इतनी रिसर्च करके आया है। नेक्स्ट देखो, बी अवेयर ऑफ रिसेंट चैलेंजेस और अचीवमेंट्स ऑफ द कंपनी। क्या चीज के अवेयरनेस रखो कि उसका सक्सेस कितना है, उसके इश्यूज कौन कौन से आए थे, चैलेंजेस कौन कौन से फेस किए, और वो कैसे अचीव किए गए हैं चैलेंजेस, इसकी भी हमको इंफॉर्मेशन रखनी है। प्रिपेयर थॉटफुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रिसर्च। अब इतना सब आपने रिसर्च कर लिया तो इसमें एक दो क्वेश्चंस भी निकाल कर रखो, ताकि आपको वहां पूछा जाए क्वेश्चंस आपके कुछ है क्या, तो आप एक अच्छा सा क्वेश्चन उनको बोल सको, मतलब क्वेश्चन कर सको और वो आपको उसका आंसर दे सके। लेकिन क्वेश्चन मस्ट बी प्रॉपर, इम्पैक्टफुल एंड थॉटफुल। ओके, अलाइन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस विद कंपनीज गोल। कंपनीज के गोल के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस या फिर आपके स्किल्स को अलाइन करो, ताकि आपके हायरिंग के चांसेस और बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, चेकलिस्ट टिप्स क्या है। आप ये सब के लिए कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हो, लिंक्डइन को फॉलो कर सकते हो, या फिर जो भी कॉम्पिटिटर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स है उनको रीड अप कर सकते हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, सेल्फ अवेयरनेस इज इक्वल टू इंटरव्यू पावर। आप खुद के आप खुद के ऊपर कितना बना सकते हो, आप खुद कितने कॉन्फिडेंट हो बोलने के लिए खुद के बारे में, ये इंटरव्यू की पावर होती है। दोनों सेम है, सेल्फ अवेयरनेस इक्वल्स टू इंटरव्यू पावर। उसमें हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखो, नो योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड करियर गोल्स। आप खुद के बारे में कितना क्लियरली बोल पा रहे हो, कि आप खुद के बारे में कितना सेल्फ अवेयर हो, कि आप अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और करियर गोल्स कितने इफेक्टिवली बता रहे हो, कितने क्लियरली बोल रहे हो, ये सेल्फ अवेयरनेस बताता है। Be prepared to share your personal and professional journey. Have a compelling journey about a background experience and how you got to where you are. आपके पर्सनल जर्नी से लेके प्रोफेशनल जर्नी तक, इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड और इफ यू आर फ्रेशर, आप ओपन होना चाहिए कि मैं ये शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नेक्स्ट, reflect on key experiences that shape your skills and mindset. Means what? You need to highlight moments that developed your abilities and way of thinking. जहां जहां आपने इम्प्रूवमेंट करी है, जहां जहां आपको आपके स्किल्स और माइंडसेट को एक शेप मिला है, वो चीजें आपको हाईलाइट करनी है। अंडरस्टैंड हाउ योर वैल्यूज अलाइन विद कंपनीज मिशन। आपके कंपनी के मिशन के साथ आपकी वैल्यूज या फिर आपकी स्किल्स कैसी अलाइन हो रही है, ये भी आपको आप जब एक्सप्लेन करोगे तो ये आपके सेल्फ अवेयरनेस पार्ट में या फिर आपके इंटरव्यू पावर में ऐड होता जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ फ्रॉम पास्ट चैलेंजेस एंड फेल्यूर। आपके अगर पास्ट चैलेंजेस है, फेल्यूर्स है, जो भी इश्यूज है, उसमें से आपने कैसा कोप अप किया, कैसी ग्रोथ की, ये डेमोन्स्ट्रेट करना भी आपके बारे में एक अवेयरनेस
रिफ्लेक्ट करता है. शो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन. इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब क्या? बी माइंडफुल ऑफ योर ओन इमोशंस एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस एंड फीडबैक. आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आप कैसे माइंड कर रहे हो और सेल्फ रिफ्लेक्ट कैसे हो रहे हो, मीन्स आप कैसे चीजों को, सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो और फीडबैक को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ये शो करता है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन. द लास्ट, communicate your motivations and what drives you. Clearly express what inspires you to work and what you are passionate about. Clearly बता दो कि आप क्या चीजों से इंस्पायर होते हो, क्या करने के बाद आप वर्क करने के लिए इंस्पायर होते हो और क्या आपको पैशन, मतलब आप क्या आपको पैशनेट बनाता है, आप क्या चीज के पैशनेट हो, ये क्लियरली एक्सप्रेस कर दो. मतलब क्या होगा, आगे वाला अवेयर हो जाएगा आपके बारे में कि आप किस टाइप के पर्सन हो. ये सब क्वेश्चंस के, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के ऊपर से आपको ऐसे यही पॉइंट्स के हिसाब से आंसर देना है ताकि आपका इंटरव्यू आपके हाथ में रहे. नेक्स्ट देखते हैं. अभी देखो, एक फाइनल थॉट बताती हूँ आपको, इंटरव्यू कैसे डिजाइन करना. इंटरव्यूज आर स्किल्स यू कैन मास्टर. खुद का इंटरव्यू अपने हाथ में रखना ये अपनी स्किल है. आपको जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना होगा. कीप लर्निंग फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस. अगर आपको कहीं रिजेक्शन आ गया तो वो रिजेक्शन क्यों आया इसको एनालाइज करना है और उसको एनालाइज करके उसमें से क्यों रिजेक्शन आया ये एनालाइज करने के बाद आपको इश्यू तो पता ही चल जाएगा. इश्यू पता चलने के बाद वो इश्यू के ऊपर इम्प्रूवमेंट करना, फिर से ग्रोथ पार्ट कंटिन्यू करना, ये आपका फाइनल थॉट होगा. अगर आप ये कर लोगे तो आपका इंटरव्यू में आप स्किल्ड रहोगे और आपका इंटरव्यू आप अपने हाथ में रखोगे एज अ मास्टर. Next, a simple phrase for you. Success is where preparation and opportunity meets. Preparation plus opportunity is equals to success. जहां आपका प्रिपरेशन हो और अपॉर्चुनिटी ऐड हो जाए तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है. लेकिन सपोज आपके पास अपॉर्चुनिटी आई लेकिन आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. तो हमारे पास दोनों साइमल्टेनियसली चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी और प्रिपरेशन भी. सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग.